Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today's lecture is the continuity of our previous lecture, which was landslides. And in previous lectures, we have covered the two parts of that lecture, like landslides, what are their types, and what are the causes of landslides. And in this particular lecture, as you can see, this is the third part of this lecture of this continuity. This is 10C. And in this particular lecture, we will study about landslide stability, or in other words, we will discuss the remedial measures which we take to avoid the uh, effects and hazards of landslides. So let us start. So remedial measures for landslides are, so what are the remedial measures? So this is an uh, like a body which is named as International Union of Geological Sciences Working Group on Landslides, like IUG GS, sorry, IUGS, International Union of Geological Sciences, or the other name is Commission on Landslide Remediation. Commission on Landslide Remediation has prepared a short list of landslides, a short list of landslide remedial measures categorized into four practical groups, namely, so these are basically the remedial measures for landslides, which is modification of slopes, slope geometry, drainage control, retaining structures, and internal slope reinforcement. So these four are the remedial measures for landslides. So modification of slope geometry, one. Second is drainage control. Third one is retaining structure, and the fourth one is internal slope reinforcement. Uh, Let me clear one more thing. Like uh, from International Union of Geological Sciences Working Group on Landslides. So this is the complete name of that particular organization. Commission on Landslide Remediation. This is the explanation of this name. IUGS, International Union of Geological Sciences Working Group on Landslides, has prepared a short list of this. So we will discuss these four remedial measures one by one. The first one is modification of slope geometry. Like if you have a very steep slope, then what you have to do, you have to make it less steeper. So in order to improve the stability of the unstable or potentially unstable slopes, like there are two cases. The one is unstable, यानी कि वो defined हो गई unstable slope है, और या पता नजर आ रहा हो कि ये गिर रहा है या गिरने वाला है बस, तो वो अनस्टेबल हो गया. तो पोटेंशियली अनस्टेबल मींस के इट मींस के देयर आर चांसेस के इन फ्यूचर यहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस हैं, ठीक है, ड्यू टू स्लोप फेलियर, ठीक है. तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियली अनस्टेबल. The profile of slope is sometimes changed by excavation or by filling at the toe of the slope. The main slope excavation remedial measures involve. अब वो कह रहा है कि यानी कि अगर आप स्लोप स्टेबिलिटी को इम्प्रूव या स्लोप को स्टेबल करना चाहें तो उस केस में क्या है कि आप उसको स्टेबल करने के तरीके क्या है कि आप समटाइम्स उसकी एक्सकेवेशन करते हैं और समटाइम्स उसके एट द टो, उसके यानी कि बाहर वाली साइड पे, टो वाली साइड पे आप क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं. यानी कि सो देयर आर टू वेज कि आप आइदर एक्सकेवेट करते हैं उसको और आइदर फिलिंग करते हैं. So the main slope excavation remedial measures involve reducing the slope height. मतलब पहला काम आप क्या करते हैं कि रेमेडियल मेजर में जब यानी कि स्लोप की ज्योमेट्री के साथ अभी आप छेड़ रहे हैं, ठीक है, तो द फर्स्ट वन आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें स्लोप की हाइट को कम कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज. द सेकंड वन इज कि उसके एंगल को बढ़ा दें.
ठीक है, सॉरी, एंगल को कम कर दें। देन रिमूविंग अनस्टेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो किसी स्लोप के ऊपर कोई ऐसे मटेरियल हैवी वेट या जो मतलब जिनके स्लाइडिंग के चांसेस हैं, ओवरटर्निंग के चांसेस हैं, और या लूज मटेरियल, कोई लूज रॉक, ठीक है, या डेब्रिस, तो उसको आप उसको वहां से रिमूव कर दें। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेटिंग बेंचेस इन द स्लोप, और दूसरा आप उसमें बेंचेस वो लगा दें। ठीक है, तो दीज आर द यू नो रेमेडियल मेजर्स टू मॉडिफाई द स्लोप ज्योमेट्री। सो अब ये वो बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, कि आपने क्या किया कि इनिशियली एंगल क्या था, ये वाला, लेट्स से ये वाला एंगल था, तो एंगल इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब एंगल इनिशियली ये था ओवरऑल स्लोप एंगल। ठीक है, अब ये एंगल एक तो आप एंगल को वो कर सकते हैं, दूसरा आप क्या करें कि आप उसको कटिंग करें। अब ये देखें, ये इन्होंने कट करके कहीं पे फिल किया, कहीं पे, अब यहाँ पे फिलिंग आ रही है। ये इनिशियल अगर स्लोप था, ठीक है, ये वाली जगह उन्होंने सारी फिलिंग की है। ठीक है, रैंप बनाया, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कहीं पे कटिंग और अगेन कहीं पे फिलिंग। सो आपने इस तरह से स्टेप्स वगैरह बना दिए, तो इस तरह से आप उसको मतलब स्लोप को स्टेबलाइज करें। दीज आर द स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू स्लोप स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो पीछे बात की कि लेट्स से दिस इज अ रोड, ठीक है, और यहाँ पे ये नेचुरल स्लोप है, सिमिलरली ये नेचुरल स्लोप है। और अब आप क्या करें, अब ये देखें, अगर ये स्लोप इस तरह रहे तो ये ज़्यादा स्टीपर है। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप क्या करें, इस पूरे पोर्शन को कट करें, फिर यहाँ पे इस तरह से स्टेप्स बना दें। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लोप है ये स्टेबल हो जाएगी। अब हमने जो पीछे बात की कि यानी कि एक तरीका क्या है कि आप कहीं पे कट करें, कहीं पे फिल करें। ठीक है, तो ये वो कटिंग और फिलिंग वाली बात यहाँ पे वो कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ द स्लोप, कि एक हमने काम किया कि एक्सकेवेट किया, दूसरी बात अगर फिलिंग एट द टो ऑफ द स्लोप एंड क्रिएटिंग अ स्टेप आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, कि आप यहाँ पे फिलिंग करते जाएं। ठीक है, फिलिंग करते जाएं तो ऑटोमेटिकली स्टेप्स बनते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ, this is another way of stabilizing the slope geometry. This is again another you know technique, कि यहाँ पे भी वही फिलिंग कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच को यूज करके वही फिलिंग करके स्लोप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। The second part of this remedial measurement of landslide is drainage control. So the presence of water in joints or in soil slope has a fundamental influence on the slope stability. Hence, the knowledge of water pressure distribution continues a basic input data for stability analysis. Like मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि water is the enemy of any civil structure. So if you allow water into any structure, ultimately that structure will going to fail. और या तो हम इस तरह भी कह सकते हैं दैट स्ट्रक्चर विल गोइंग टू फेल और दैट विल प्रीमेच्योरली फेल, यानी कि वो अपने जो डिजाइन पीरियड है उससे पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अगर पानी जो है वो उस स्ट्रक्चर के जॉइंट्स में चला जाए तो ऑब्वियसली पानी जो है अपना रास्ता बना लेता है। तो इन शॉर्ट के आपका जो स्ट्रक्चर है वो अगर ये स्लोप की बात करें तो वहाँ पे वो ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग के चांसेस हैं। ठीक है, अगर किसी और स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली फिर फेलियर होगा। सो ड्रेनेज को कंट्रोल आप कैसे करेंगे? ड्रेनेज को आप ऐसे कंट्रोल करेंगे कि ड्रेनेज एज अ मेथड ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव, but as long-term solution it suffers greatly because the drains must be maintained if they are to continue to function. Like वो कह रहे हैं कि ड्रेनेज जो कंट्रोल वाला जो तरीका है या
दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, कि फौरन से वो पानी जो है आपका सारा जो स्ट्रक्चर से वो बाहर निकाल देता है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको फंक्शनिंग आप चाह रहे हैं कि वो फंक्शनैलिटी को अपनी जो कंटिन्यू रखे, तो फिर इस केस में वो जो है वो आपके लिए एक तरह से डिफिकल्ट है या कॉस्ट इफेक्टिव है, कि उसमें फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट और फंक्शनैलिटी के लिए आपको बार बार उसको मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कि वो ड्रेनेज होल्स और वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपने उसको रिमूव करना होता है वहाँ से, ताकि जो आपके होल्स हैं वो क्लियर हैं रहें, तो जिससे पानी जो है या वाटर जो है वो पास करे, ठीक है। सो डीप ड्रेन्स मॉडिफाई द सीपेज पैटर्न विद इन द सॉइल और रॉक मैस एंड आर मच मोर कॉस्टली देन शैलो ड्रेन्स। तो अब वो बात करें कि जो बहुत ज़्यादा डीप ड्रेन्स होंगे, बहुत यानी कि ज़मीन में बहुत नीचे जाके अगर आप अगर ड्रेन बनाएं तो वो ओबियसली कॉस्टली होंगे। नीचे जाके वहाँ पे ड्रेन बनाना, फिर ओबियसली उसकी मेंटेनेंस करना, तो विच इज़ अ हेक्टिक जॉब। बट जो शैलो ड्रेन्स हैं, मतलब कम डेप्थ पे आप अगर ड्रेन्स बनाएं तो वो इजी हैं एज कम्पेयर टू डीप वंस। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट केसेस हैं। रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे उन्होंने ये ड्रेनेज दी हुई है। सिमिलरली ये एक रिटेनिंग वॉल है। अब ये दिस वन इज रिलेटिवली शैलो ड्रेन, दिस वन इज डीप, अगेन दिस वन इज डीप। और ये देखें, ये यहाँ पे भी ये कोई वॉल बना रहे हैं या आई थिंक रिटेनिंग वॉल है या वट एवर। सो ये उन्होंने जो डंडे से दिए हुए हैं होल्स, एक तरह से ये बाद में ये निकाल लेंगे और या इन्हीं पाइप में से पानी जो है वाटर को जो है वो पास करवाएंगे इन केस अगर आता है, ठीक है, ताकि ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये जो है इसमें पानी जो है वो न जाए। सो दीज आर द इफेक्टिव measures which we take to to make the slope stable. So these are the measures from drainage control point of view. So the first one is reshaping the surface of the slope area to control flow and surface runoff. कि आप reshaping कर दें, reshaping the surface of the slope area, कि आप उसको ना कह लें कि एक तरह से स्लोप वहां पे दे दें, ठीक है, ताकि पानी जो है ऊपर से वो कंटिन्यूसली सरफेस के ऊपर से ही रन ऑफ बन जाए। इवन अगर आप मट्टी का ना वो जिसे कहते हैं एक चैनल सी बना लें और स्लोप उसको दे दें, तो हालांकि वाटर जो है वो सॉइल में पेनिट्रेट करता है, परकुलेट कर जाता है, बट अगर आप वहाँ पे एक ड्रेनेज सी छोटी सी बना दें और उसको स्लोप दे दें, तो वो सरफेस के ऊपर ही वाटर जो है वो मोस्ट पार्ट जो है उसका वो मूव कर जाएगा सरफेस के ऊपर ही। तो वो एक बात ये कह रहे हैं कि आप सरफेस के ऊपर थोड़ा सा रीशेप कर दें और ताकि सरफेस के ऊपर से ही पानी जो है फ्लो कर जाए। सेकेंडली, क्रिएटिंग इम्परमिएबल लेयर्स एट स्लोप क्रेस्ट टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर इन्फिल्ट्रेशन। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो टॉप सरफेस है, ठीक है, उसको आप इम्परमिएबल बना लें, मतलब उसको वाटर टाइट कर दें ताकि उसमें पानी जो है नीचे ना जाए, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ फ्लो लाइन टू डाइवर्ट अनडिजायरेबल सरफेस फ्लोज इनटू नॉन प्रॉब्लम एरिया, कि आप एक फ्लो लाइन, वही चैनल वाली बात जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई होती है, एक चैनल से बना लें या फ्लो लाइन बना लें, ताकि आप वाटर जो है, लेट से आपका पीछे अगर रिटेनिंग वॉल है तो रिटेनिंग वॉल वाला एरिया ओबियसली हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे अगर पानी जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा। बट अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी अगर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिटेनिंग वॉल के पीछे वाले एरिया में आप क्या करें, वो चैनल सी बना लें और दूसरी जगह पे वह जाके चैनल को छोड़ दें, ताकि वहां पे जाके पानी वाटर जो है वो एक्यूमुलेट है और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। मिनिमाइजिंग द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू वेजिटेशन ग्रोथ, कि आप ये जो हम वेजिटेशन को रिमूव, ये ग्रासिंग और इन चीज़ों को जब हम रिमूव करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर वाटर पर्कुलेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि वेजिटेशन का जो रिमूवल है इसको कम कर दें, यानी कि वेजिटेशन को रिमूव ना करें इन शॉर्ट, ठीक है। और दूसरा, वेजिटेशन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वेजिटेशन करें, ठीक है, वेजिटेशन को एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू वेजिटेशन ग्रोथ वहाँ पे उगाएं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टो ड्रेन्स टू इंटरसेप्ट द डिस्चार्ज एंड मटेरियल स्वेप्ट डाउन बाय द फ्लो। टो ड्रेन्स की पीछे जो फिगर्स हमने देखी हैं वो
ये वाली, ठीक है। सो दीज आर द टो ड्रेन्स, ये वाली। Now the third part of this remedial measurement is retaining structures. पहला हमने देखा कि आप उसमें उसके एंगल स्लोप ज्योमेट्री को जो है उसके साथ आप छेड़ते हैं। सेकंड में आपने ड्रेनेज कंट्रोल को देखा। थर्ड वन इज रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कि आप वहाँ पे रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स दे दें। नॉर्मली रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करते होते हैं कि आप अक्सर अगर कहीं पे आपने ट्रेवल किया हो हिली एरिया में स्पेशली, तो रोड्स के जो साइड्स पे जहाँ पे आपके जहाँ पे हम नॉर्मली कहते हैं जी लैंड स्लाइडिंग हो गई, तो अब जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, तो वहाँ पे रोड के ऊपर वाली साइड जिस तरफ से लैंड स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि उसको जो लैंड स्लाइडिंग है उसको मिनिमाइज किया जाए। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, अच्छा ये एक चीज कि आपने ऊपर वाली साइड पे रिटेनिंग वॉल बना दी, सिमिलरली आप नीचे वाली साइड पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रोड के नीचे अगर रोड जो नीचे वाली साइड पे जो है रोड सिरक जाती है या स्लाइड कर जाती है, तो उस तरफ भी आप कोई जिसे कहते हैं रीइंफोर्स्ड जो स्ट्रक्चर बना दें, जो कि उस आपके रोड को रिटेन करे, ठीक है, स्लाइड ना करे बल्कि। So the construction of retaining wall along the problematic slopes of roads is a very common practice। वही बात कर रहा है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की, कि जो प्रॉब्लमेटिक स्लोप्स हैं जहाँ पे यानी कि लैंड स्लाइड्स के चांसेस हैं, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल का जो प्रैक्टिस है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। आर्बिट्रेरली कंस्ट्रक्शन ऑफ सच रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स as a protective measure without estimating lateral earth pressure and the passive force will not serve the purpose and increase the cost of construction। तो यहाँ पे वो एक बड़ी जैसे आपके लिए कीमती बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि अगर आप जिसे कहते हैं ना ब्लाइंडली कंस्ट्रक्शन करें रिटेनिंग वॉल की, जबकि आपको पता ही नहीं है कि such as protective measure without estimating lateral earth pressure, कि बैक साइड पे अर्थ प्रेशर कितना है, लेटरल अर्थ प्रेशर कितना है, और और सेकेंडली वो पैसिव फोर्स कितनी है जो कि उस वॉल पे एग्जर्ट होगी। तो अगर ये दो चीजें आपको नहीं पता, तो देन जो आपकी रिटेनिंग वॉल है दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बाकी वो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब वो पर्पज उतना सर्व नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। सेकेंडली वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। और ये जो पैसिव लेटरल अर्थ प्रेशर है, ये एस्टिमेशन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर एंड पैसिव फोर्स, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप सॉइल मैकेनिक्स 1 2 एंड इसी तरह जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और ये आपके आगे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, the normal retaining walls have been considered as effective structure to prevent small scale movements involving minor lateral earth pressure। तो वही बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल रिटेनिंग वॉल्स हैं उनको एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है जो जो कि स्मॉल स्केल मूवमेंट्स को, ठीक है, उनको वो प्रेशर को जो है वो बेयर कर लेते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इनको आगे वन बाय वन हम डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये दीज आर द यू नो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स और रिटेनिंग वॉल्स जो कि डिफरेंट सिनेरियोज में जो रोड्स के अलॉन्ग साइड जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का ये यहाँ पे आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन है। सो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ टिपिकल रिटेनिंग वॉल्स। अब यहाँ पे देखें इस दिस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड ग्रेविटी वॉल, दिस वन इज पाइलिंग वॉल, दिस वन इज कैंटिलीवर वॉल। कैंटिलीवर इसकी वजह से, मतलब ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, कैंटिलीवर बीम जैसा आपने सॉइल मैकेनिक्स में अगर पढ़ा हो तो वो कैंटिलीवर है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड वॉल इसकी वजह से ये कैंटिलीवर है। एंकोर्ड वॉल, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो है पाइल मतलब कॉन्सेप्ट जो है ये पाइल ड्राइव की हुई है, ठीक है, जमीन के अंदर। तो ये भी रिटेनिंग वॉल का पर्पस जो है सर्व कर रही है। सिमिलरली ये कैंटिलीवर वॉल, ये फंक्शन सबका एक है।
जो इनका यूटिलिटी है वो आप कह लें कि लोकेशन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज वहाँ पे, या जो आपका एरिया है या टोपोग्राफी है वट एवर, तो वहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिटेनिंग स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड करना है। अब ग्रेविटी वॉल में आप देखें, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसका जो रेजोल्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा ये देखें, दिस रेड एरो डिनोट्स द अर्थ प्रेशर वेक्टर, सिमिलरली this blue arrow denotes the gravity vector and this green one denotes the reactive force vector, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये कलर्स शो कर रहे हैं कि कौन सी फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ब्लू वाला नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लू वाला नहीं है, तो इट मीन्स कि पाइलिंग और एंकर्ड वॉल में ये जो बारीक यानी कि थिन थिन रिटेनिंग वॉल्स हैं, यहाँ पे ग्रेविटी वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये खुद इटसेल्फ जो है ना बड़े थिन है और इनका अपना ऐसा वेट नहीं है एज कम्पेयर टू द कैंटिलीवर एंड ग्रेविटी बॉल, ठीक है। बाकी इनके जो फोर्सेज जहाँ जहाँ लग रही हैं वो आपको फिगर्स में दिखाई दिखाई दी हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड वॉल टाइप, इस ये जो ग्रेविटी वॉल है इसको स्टैंडर्ड वॉल टाइप कहते हैं, दैट होल्ड्स द अर्थ मेनली थ्रू इट्स ओन वेट। अब ये जो जमीन को होल्ड करता है, ये अपने ही वजन से, अपने ही वेट से जो है आप कह लें कि ये पिछला जो स्ट्रक्चर है बैकफिल है, यहाँ पे बैकफिल होगा हमारा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे, यहाँ ये पीछे वाला एरिया जो है ना ये सारा ये फिल होगा, तो वो इसको अपने ही वेट से इसको बेयर करता है, ठीक है। कैन पाइवोट एंड topple relatively easy as the internal sewerage of the earth pressure is very high। तो अब ये कह रहे हैं कि टॉपल अप मतलब ये ऊपर से ओवरटर्निंग के चांसेस, मतलब ऊपर से इधर गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर इसको आसानी से जो है टॉपल अप कर देगा, उल्टा देगा, ठीक है। पाइलिंग में के केस में वो क्या कह रहे हैं कि यूजिंग लॉन्ग पाइल्स, यहाँ पे लॉन्ग पाइल्स यूज करते हैं। दिस वॉल इज फिक्स्ड बाय सॉइल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स लोअर लेंथ। इफ द पाइल्स themselves can resist the bending force, this wall can take high loads। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग पाइल्स यूज करते हैं और ये जमीन में दोनों साइड से जो है लॉन्ग पाइल, इसलिए कि ये जो अब यहाँ पे जो है ना ग्राउंड लेवल, इससे ये काफी नीचे को करके ये जो है ना ड्राइव की होती है जमीन के अंदर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों साइड से ये जो वॉल है ये फिक्स्ड होती है, क्योंकि इस तरफ से भी इसको प्रेशर लग रहा होता है और इस तरफ से भी अर्थ का, ठीक है। इसे रिएक्टिव फोर्स कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो अब रिएक्टिव फोर्स जो है ये इसको मतलब जो वॉल है इसको पकड़ के रखती है अपनी जगह पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये वॉल, पाइलिंग वॉल, ये जो मूवमेंट का जो फैक्टर है, अगर ये बेंडिंग फोर्स को बेयर कर लेती है, तो इट मीन्स के ये वॉल जो है ये बहुत ज़्यादा वेट को कैरी कर सकती है, प्रोवाइडेड है कि ये बेंडिंग फोर्स को बेयर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैंटिलीवर। फोर्सेस का मैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इंडिकेटेड है कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकफिल है यहाँ पे, ठीक है। द कैंटिलीवर वॉल विच में आल्सो एक्सटेंड इन द अदर डायरेक्शन, मतलब वही बात है कि अब यहाँ से तो इधर एक्सटेंड हुई हुई है, लेकिन दूसरी साइड में भी एक्सटेंड हुई हुई है, ठीक है, बैक साइड में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर, ठीक है। uses the same earth pressure trying to topple it to stabilize itself with the second lever arm। अब यहाँ पे ये टॉपल अप से यानी कि इस तरफ ओवर टर्निंग को यहाँ पे चांसेस कैंटिलीवर में कम है, क्योंकि इस ये जो आर्म एक्सटेंडेड है बैक साइड पे इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसको नीचे जमीन के ऊपर स्टे करने के लिए एक बड़ी सरफेस या फ्लैट सरफेस मिल गई है एज कम्पेयर टू दिस ग्रेविटी वॉल। एंकर्ड वॉल में क्या होता है कि ये छोटी सी वॉल है जिसको जमीन में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ड्राइव नहीं किया जाता, बट एंकर्ड मीन मतलब यहाँ पे ये एक तरह से स्टिचिंग का काम किया हुआ है कि री के साथ ज़मीन के अंदर जाके इसको
फिक्स किया होता है ताकि ये ओवरटर्निंग इसमें खत्म हो जाए। तो यहाँ पे भी वो एक्सप्लेनेशन है कि दिस वॉल कीप्स इटसेल्फ फ्रॉम टॉपिंग बाय हैविंग केबल्स ड्राइवन इनटू द सॉइल और रॉक। ठीक है, ये केबल को ड्राइव किया हुआ है और इसके साथ बांधा हुआ है ताकि क्या हो कि ये ओवरटर्निंग या टॉपल ना हो। ठीक है, फिक्स्ड बाय द expanding anchors can be combined with other types of walls। तो इसको आप दूसरी टाइप्स ऑफ वॉल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ये काम जो स्टिचिंग वाला है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो दीज वर द explanations of different types of retaining walls। अब ये देखें, ये एक छोटा सा रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि ये कौन सा रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आई थिंक दिस वन इज एंकर्ड वॉल। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि केबल के साथ इसको अंदर से फिक्स किया हुआ है। चूंकि दूसरी रिटेनिंग वॉल होती तो फिर यहाँ पे स्लोप उन्होंने दी होती। अब ये जो है दिस वन इज विच वन इज दिस कुड बी आइदर ग्रेविटी वॉल। ठीक है, अब यहाँ ये देखें, यहाँ पे ग्राउंड फेलियर हुआ है, बट अब ये देखें यहाँ पे किसी भी वजह से जो फेलियर हुआ है, तो ये इसका पर्पज़ यही है कि आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और इस फेलियर को अवॉइड करें। नाउ द लास्ट वन इज internal slope reinforcement। So this is the last remedial measure of landslides। So the aim of rocks slope stabilization with structural element is to help the rock mass to support itself by applying external structures which are not a part of rock mass but support it externally। Rock bolts and cable bolts are reinforcing elements that are inserted into the rock mass in order to increase the rock stiffness and strength। ये exactly वही चीज है जो पीछे हमने ये चीज पढ़ी है, ये वाली एंकर्ड वॉल। मतलब आप स्टिचिंग कर देते हैं, अंदर से अंदर वाली साइड से रॉक को बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं। या अगर आपकी रॉक का एक कुछ पोर्शन जो है वो सिरक जाना या स्लाइड कर जाएगा या जिसमें shear फेलियर हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उस रॉक को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांध देते हैं बाय केबल्स, बाय रीइंफोर्स्ड वायर्स। ठीक है, सो रॉक बोल्ट्स और केबल बोल्ट्स आर एंकर्ड और एंकर्स। ठीक है, वही चीज है पिछला वर्ड इन रॉक और सॉइल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज मैकेनिकली एंकर्ड बोल्ट्स। एक वो टाइप है, आपने मैकेनिकली उसको एक बोल्ट्स लगा दिए। ठीक है, सेकेंडली आपने ग्राउटेड रॉक बोल्ट्स, grouted cable bolts and friction anchored bolts। The rock bolts are made up of soil or tube formed steel, while cable bolts are normally made up of steel wires which are laid in a rope configuration। Rock bolts and cable bolts can be installed untensioned or tensioned with cement grouting rod mesh। अच्छा, ये वही बातें सारी कर रहे हैं, अगर मैं फिगर्स दिखाता हूँ आपको फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है चीज। अब वो कह रहे हैं कि ये देखें, ये आपका जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर था ये यहाँ से किसी भी वजह से इसमें फेलियर आ रहा था। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये बोल्टिंग कर दी। अब बोल्टिंग के वो फर्दर कह रहे हैं कि काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जो कि उसने कहा कि मैकेनिकली एंकर्ड बोल्ट्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे नट्स वगैरह जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, तो दिस वन इज द मैकेनिकली एंकर्ड बोल्ट। अब यहाँ पे फेलियर था और पिछला जो रॉक का पार्ट था, इन दोनों को उन्होंने स्टिच कर दिया एक तरफ से। ठीक है, अब ये दोनों को बांध मतलब ये दोनों वन यूनिट दोबारा से बन गया। इसका दूसरा टाइप क्या है कि ग्राउटेड रॉक बोल्ट्स, कि आप इसी में कोई होल करें किसी भी मशीन के थ्रू और उसमें ग्राउटिंग कर दें, मतलब कंक्रीट एक ग्राउट जो है ये कंक्रीट की स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो आप उसमें ग्राउटिंग कर दें और वो ग्राउटिंग जो है वो कंक्रीट जो है वो इसको पकड़ ले। ठीक है, वन यूनिट बन जाए। सिमिलरली ग्राउटेड केबल बोल्ट्स, यानी कि आपने ग्राउटिंग भी कर दी और उसमें केबल्स भी डाल दी। एंड फ्रिक्शन एंकर्ड बोल्ट्स, ठीक है, ये सारी वही चीज। ठीक है, वही टाइप है। तो आगे चलते हैं, ये देखें, ये जो है वही जो पिछली टेक्निक हमने पढ़ी कि जिसमें स्लोप इंटरनल स्लोप को रीइंफोर्समेंट, ये सारी इंटरनल स्लोप की रीइंफोर्समेंट की हुई है।
पूरी थ्रू आउट द वॉल आप इसमें देख सकते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट की हुई है ताकि ये जो स्लोप, ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो है ओवरटर्न ना करे या गिरे ना। ठीक है, अंदर जो भी रॉक है उसके साथ इसको उन्होंने फिक्स कर दिया, टाई कर दिया हुआ है। तो ये एक अलग से एक नया सिनेरियो आपको दिखाया गया है कि ग्राउंड के नीचे कोई बेसमेंट थी या वॉट एवर जो भी था, अब यहाँ पे किसी भी वजह से पानी आ गया, जो भी है वहाँ पे फेलियर के चांसेस हैं। तो ये देखें, अब इस चीज़ को बांधने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये ग्राउटिंग करके, सॉरी, ये वही एंकर, ये देखें क्या किया हुआ है कि रॉक इस वॉल को और इसको स्टिचिंग कर दी एक तरह से। और ये देखें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि एंगल ऑफ पाइल इज द साइड प्रेजेंट टू इंश्योर द स्टेबल पाइल बीनीथ द fill is reached can be installed with little or no excavation। कि बहुत कम एक्सकेवेशन या बगैर एक्सकेवेशन के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस दिस टाइप ऑफ this type of stabilization। basically this is type of stabilization। so इस ये specific जो case है, this is the basement wall stabilization। ठीक है, so that's it about slope stabilization techniques। so I hope आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई then you can ask questions at any time। thank you।